Dear children, how are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, before moving ahead to our next chapter, I want to raise some questions from you, children. First of all, why Earth is known as unique planet? So, as you all know, Earth is unique planet due to presence of atmosphere and presence of water in it. Okay. Now, children, tell me how rainfall is caused. What's the mechanism of rainfall? So very easy. It's water cycle. When evaporation and condensation take place, then mechanism of rainfall takes place. Okay. So children, our next chapter is also regarding these topics. Those you have already studied. Okay. So let us start our next chapter. So children, let us move ahead towards chapter 5, water surrounding the earth. And we have already read in the previous chapter that planet Earth is often called the water planet or the blue planet because of presence of abundant water on it. अर्थ को बच्चे वाटर प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर. ओके. और वाटर कितना कवर करता है अर्थ सरफेस पे? वाटर कवर्स अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस. ओके. और किस फॉर्म में ये प्रेजेंट है बच्चे? एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स, अंडरग्राउंड फ्लो, ग्लेशियल आइस एंड वाटर वेपर इन द एयर. और ये किस फॉर्म में है बच्चे? ओशियंस की फॉर्म में है, रिवर्स में जो वाटर है, लेक्स में अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स पे जो आइस जमी हुई है, एंड ड्यूरिंग इवेपोरेशन जो वाटर वेपर्स बनते हैं, दीज आर ऑल्सो द फॉर्म ऑफ वाटर. सो बच्चे, मोर देन 97% ऑफ दिस realm of water on the earth is salt water present in oceans and seas. जो भी 71% वाटर है उसका 97% बच्चे सॉल्टी वाटर है अर्थ में, जो भी ओशंस और सीज में है. ओके. और ये सॉल्टी वाटर जो है इसे हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. गॉट इट. और जो सॉल्टी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है दैट इज़ वेरी कॉस्टली, और ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में ही पॉसिबल है. लार्ज स्केल पे ये इंडिया में नहीं है. स्मॉल स्केल पे सब जगह बना सकते हैं, सॉल्टी वाटर को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रेश वाटर में, बट ओनली ऑन स्मॉल स्केल, नॉट ऑन लार्ज स्केल. एंड 2% is glacier ice and less than 1% of all the water on earth is fresh water in rivers and lakes. सो बच्चे 2% जो वाटर है वो ग्लेशियर्स पे जमा हुआ है, और ग्लेशियर्स आपके बहुत दूर हैं. आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल और भी जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत दूर हैं हमसे. वहाँ के पानी को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. लेस देन 1% ऑफ ऑल द वाटर ऑन अर्थ इज़ फ्रेश वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स. सो बच्चे, कॉमन पर्सन के लिए पूरी अर्थ में ओनली 1% वाटर बचता है, जो कि कहाँ पर अवेलेबल है? रिवर्स और लेक्स में. और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन पानी तो उतना ही है ना बच्चे, और हम लोग इतना वाटर वेस्ट करते हैं. सो प्लीज़ डोंट वेस्ट वाटर. ओके. Then next बच्चे, the oceans namely Pacific, Atlantic, Indian and Arctic are the largest reservoirs of water on our earth. ये जो oceans है, 4 big oceans like Pacific, Atlantic, Indian and Arctic, ये बहुत बड़े reservoir हैं water के हमारी अर्थ पे. reservoir means store house. ओके. oceans और seas में तो बहुत ज़्यादा पानी होता है. As you can see, oceans and seas are storehouse of water and the largest reservoirs. Okay. So let us study about principal water bodies, their nature, source, movement and importance in our life. Okay. So children, the earth receives major part of pure water through rainfall. Okay. In addition, it receives fresh water through numerous springs and rivers. और fresh water कहाँ से आता है? झरनों से और rivers में मिलता है fresh water. The water never remains static. वाटर बेटे ऐसी चीज़ है वो स्टैटिक रह ही नहीं सकता. ये तो फ्लो है, कॉन्टिन्यूस फ्लो. ओके. इट हैज़ अ साइकिल विच हैज़ नीदर बिगिनिंग नॉर एन एंड. ये एक साइकिल है बच्चे जो कभी ना शुरू होती है ना ख़त्म होती है. सो दिस इज़ नोन एज वाटर साइकिल एंड यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस वाटर साइकिल. ओके. So children, let us discuss once again water cycle. So children, the sun is the main source of energy which causes water to evaporate.
Water of the oceans is converted into water vapors due to the heat of sun by the process of evaporation. Okay. जो ओशंस का पानी होता है वो सन की हीट के कारण किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे? एज यू ऑलरेडी नो, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. तो जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है ज़्यादा इवेपोरेशन वहीं से ही होती है, ओशंस के थ्रू. सो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस हियर. पानी ऊपर चला जाता है एटमॉस्फेयर में थ्रू दिस प्रोसेस. ओके, देन बच्चे, the evaporated vapors rise up in the atmosphere and condense into tiny particles of ice or droplets of water to form clouds. जब वाटर वेपर्स ऊपर पहुंच जाते हैं बच्चे एटमॉस्फेयर में, देन कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है. उन्हें थोड़ी ठंडक मिलती है और जो वेपर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चे? वो टाइनी क्रिस्टल्स में, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं पानी के और क्लाउड्स को फॉर्म करते हैं. गॉट इट? सो हियर अपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंसेशन टेक्स प्लेस. ओके, व्हेन द कंडेंस्ड आइस क्रिस्टल्स or water droplets grow in size and unable to float. जब बच्चे ये कंडेंस्ड आइस क्रिस्टल्स और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, पानी की बूंदें, वो बड़ी बूंदें बन जाती हैं, साइज़ में बड़ी हो जाती हैं और फ्लोट करने के लायक नहीं रहती, देन दे फॉल डाउन ओवर द अर्थ सरफेस एज प्रेसिपिटेशन. यहाँ पे बच्चे कंडेंसेशन होती है जब आइस क्रिस्टल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स भारी हो जाते हैं और फ्लोट करने के लायक नहीं रहते हैं, तो वो नीचे गिर जाते हैं अर्थ सरफेस पे एज प्रेसिपिटेशन. सो प्रेसिपिटेशन मीन्स हैवी रेनफॉल, इट मे बी ड्रिजलिंग, इट मे बी स्नोफॉल. ओके, सो ड्यू टू प्रेसिपिटेशन जो वाटर ऊपर जाता है इवेपोरेशन के थ्रू, वो फिर से अर्थ में आ जाता है, नीचे आ जाता है, अर्थ सरफेस पे आ जाता है और ओशंस में ही चला जाता है अगेन. ओके, सो फिर से वही नेवर एंडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. अगेन इवेपोरेशन, देन कंडेंसेशन एंड देन अगेन precipitation. Okay, so it is because of this never ending circulation of this process, this is described as water cycle. So इसी को ही हम water cycle कहते हैं, and it has no beginning and no end. And due to this process of water cycle, mechanism of rainfall is going on. So what's next बच्चे? A major part of the water runs off over the earth's surface फॉर्मिंग न्यूमरस स्ट्रीम्स. बच्चे अर्थ के सरफेस में डिफरेंट स्ट्रीम्स के रूप में पानी बहता रहता है और जो स्मॉल पोर्शन होता है रेन वाटर का बच्चे, वो डीप इनसाइड चला जाता है अर्थ के, जो कि ग्राउंड वाटर को फॉर्म करता है, विच फॉर्म्स ग्राउंड वाटर. एंड दिस ग्राउंड वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स. ये ग्राउंड वाटर जो होता है बच्चे, प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है वाटर का. प्लांट्स को जो ग्राउंड वाटर है वो किस तरह से मिलता है? थ्रू देयर रूट्स. रूट्स हैं, पानी को सक कर लेती हैं एंड प्लांट्स रिटर्न कर देते हैं इसी वाटर को एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्ट एयर थ्रू देयर लीव्स. और लीव्स के थ्रू जब मॉइस्ट एयर निकलती है, गीली हवा जो ह्यूमिड वेदर के टाइम निकलती है, ओके, एंड इन सच वे प्लांट्स रिटर्न वाटर टू द एटमॉस्फेयर. So water is also present in form of ice crystals in high altitude regions. और water कहाँ पर अवेलेबल होता है बच्चे? It is present in the form of ice crystals. जो ग्लेशियर्स पे आइस जमी रहती है हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में, वो भी वाटर की ही एक फॉर्म होती है. Got it? Thus, we can infer that there is a continuous supply of water to our earth. So अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे, वाटर साइकिल भी आपने काफ़ी बार पढ़ ली है कि एक continuous सप्लाई है बच्चे वाटर की हमारे अर्थ पे. However, the distribution of water is not uniform. जो वाटर की proportion है बच्चे वो यूनिफॉर्म नहीं है. Some areas receive heavy rainfall or snowfall which increases water supply and makes it surplus there. कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है बच्चे और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, जिससे वहाँ पे वाटर सप्लाई बढ़ जाती है और वहाँ पे वो सरप्लस हो जाता है. सच एज़ मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में सभी में बहुत बारिश होती है, ओके, और हिमालयस पे स्नोफॉल भी रहती है. बट इसके कंपैरिजन में बच्चे राजस्थान में कंपैरेटिवली लेह लद्दाख में बहुत ही कम रेनफॉल होती है, वेरी लेस रेनफॉल. सो दीज एरियाज हैविंग स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, वहाँ पर पानी की कमी होती है बच्चे.
and we can regulate this resource by storing the surplus water in large reservoirs or conserving it in several other ways. तो वाटर को बच्चे हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, या तो इसे लार्ज वाटर रेजरवायर्स में स्टोर करें या इसे किसी और वे में कंजर्व करें ताकि ये काम आ सके लाइफ को सस्टेन करने में अर्थ पे. ओके, सो द जुडिशियल यूज़ ऑफ वाटर इज़ नेसेसरी. जुडिशियल मीन्स वाइज यूज़ ऑफ, बुद्धिमानी से पानी को खर्च करें. ओके, सो वी शुड सेव दिस प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स. हमें इस अनमोल रिसोर्स को बचाना चाहिए. वाटर इज़ प्राइसलेस बच्चे. वाटर बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है. अगर हमें पानी ना मिले तो हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे. खाने के बिना फिर भी रहा जा सकता है, बट पानी के बिना हम ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकते. वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर. ओके, so that's all in today's topic बच्चे. Revise water cycle once again. Okay,